हाय, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू अनअकैडमी। सो आज जो हमारे लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका आज हमारा 10th लेक्चर है और अभी तक 9 लेक्चर्स के अंदर वी हैव डिस्कस मल्टीपल एजेंसीज एट ए ग्लोबल लेवल एंड दैट वी स्टार्टेड विद द AIIB। ठीक है, और जो हमने कल डिस्कस किया था, नॉट कल, यू कैन से whatever we discussed day before yesterday was the about World Bank. So World Bank के बारे में मैंने आपको बताया था that in case of World Bank that there are total 5 agencies which are being there as a part of World Bank group. So out of these 5 we have 2 which are being called as a World Bank. तो जो हमारी कल डिस्कशन हुई थी that was mainly about the IBRD हमने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो सेकेंड हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट दी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों के बारे में हमने बात किया था। अब देखिए, इन दोनों का काम बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, क्योंकि इनका काम है लोन प्रोवाइड करना टू दी गवर्नमेंट्स हु आर मेंबर टू इट। ठीक है, आज के लेक्चर्स में देखिए जो हमारी बात होने वाली है दैट इज अबाउट द रिमेनिंग 3 इंस्टीट्यूशंस, ओके, which are being part of this World Bank group, and these are MIGA. The full form is Multilateral Investment Guarantee Agency. Second है हमारा about the IFC, International Finance Corporation, and the third is about ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute. Okay, that is what all the 3 we are going to discuss today. तो आज जो हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो कल हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, एंड आई रियली होप दैट वट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट यू पीपल आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ होल्ड ओवर देम। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दैट टुडे इज 10th of October एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर इकोनॉमिक्स फ्रॉम 3:30 PM today. Okay, so obviously when you people will see that class, we people were doing that particular class. So if you have not joined it, you can join it from tomorrow, and obviously whatever recorded class is being there, that you can simply follow that. Okay, वो आप follow कर सकते हैं without any problem. ठीक है, 40 क्लासेस होंगी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ दैट दीज आर इन टोटल 40 क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू टेक एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर इकोनॉमिक सेक्शन फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग दी about the topic that we need to discuss today, let's discuss about the Unacademy. So Unacademy, is the largest learning platform, online mode. Then why you need to choose Unacademy? Because toppers were part of it. You can also go for the educator as per your liking. Then you can follow us on the Telegram channel and on community link of the Unacademy app. Then the notes you can simply get for around 9900 rupees only. And then 10% off you people will be able to get by using my code for the plus courses as well as the iconic courses. So my code is PG UPSC is my code. So for 36 months, if you use the code, okay, you can simply go and take it for 2697 for 36 month. And for iconic courses, you just need to pay 4267, and the original price is 41 per month. Then you can also go for combo subscription by simply joining here, and you will be able to get good amount of off, again 10% off by using my code. And you can also go for the optional subscription separately. Okay, then 6th of October new batch has been started. Then 0% EMI option, you can also go for it. And then currently we have started something called Unacademy Ultra Combat. So under that 50 questions will be there, and 60 minutes you will be able to provide it. And current affairs special we have, so around 1000 lucky participants to win the Amazon gift vouchers, and the results will be announced on 16th of October 11 AM. Okay, so that is what we have. So you can go for it, and you can simply download our app from the Android, and moreover from the this Apple. Okay, now before discussing what are the main functions of these 5 agencies, let me tell you in very brief about these 5. That जो MIGA है, then we have something called like, if you simply go by this, so do remember that out of the 5 agencies of the World Bank Group, India is only a member of the 4 agencies. The only agencies to which India is not a member is ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute. Do remember, India is not a member of it. So out of these 5,
India is only member to the IBRD, IDA, MIGA, and IFC. So that is what the India is having membership of these four. So whatever document you people are being able to see here, that document I downloaded from the Government of India's website, Ministry of External Affairs, and they have given here that how much amount of shareholding India is having in the various agencies. So as you can see, India's voting power will increase to 3.26% from the present of 3.14%. India has commenced its subscription of additional share allocated following 2010 reform. So you can say currently our shareholding and the voting power in case of IBRD is how much? 3.26%. Then IDA में अगर आप बात करते हैं तो इंडिया की जो वोटिंग पावर दैट इज अराउंड 4.4%. ओके. In case of MIGA, as you know, so India is having around 5371 shares with a voting power of 2.56%. And whatever amount of number of shares we have purchased, you can say that will lead to 3.3%. IFC is again India is currently holding 81,342 shares of this and this. पहली बात तो ये है, देखिए जितनी भी शेयर होल्डिंग हो, यूपीएससी कभी भी आपसे फैक्ट्स नहीं पूछने वाला, सो डोंट वरी अबाउट दैट. And moreover, why we people should not worry about the exact number of votes that is being given here. The reason is कि ये नंबर जो है आपके चेंज होते रहते हैं. Because what happened, whatever amount of new shares are being allocated to India, it's not like that we are going to get all the shares in just one day. It will take time. उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे हमें एलोकेट होंगे और उसके हिसाब से हमारी वोटिंग पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है. Okay, that is what we have. Now, after having the knowledge about that how much amount of shareholding India is having in these three, देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे इन पांचों में से जो सबसे टेक्निकल पार्ट है डिस्कस करने का वो है मीगा. तो मेनली आप मान के चलिए आज का जो लेक्चर हमारा मेनली जो सेंटर्ड है दैट इज टुवर्ड्स द मीगास डिस्कशन एंड वेरी लेस एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव अबाउट दी IFC. And hardly any discussion we are going to have about the ICSID because India is not a member of ICSID, so we are not supposed to very much bother about it. ठीक है. अब देखिए मीगा है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. तो मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुदेशीय, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका निवेश. ओके. गारंटी एजेंसी यानी कि एक ऐसी एजेंसी है ग्लोबल लेवल पे जो गारंटी देती है investment के regarding. See, this agency was formed in 1988, I will say. Okay. And as soon as this agency was formed, you won't believe India applied for the membership of it. And then in 1994, you can say India got the formal membership of the MIGA. ठीक है. अब देखिए मीगा जो है एक तरीके से जैसे नाम है गारंटी एजेंसी. सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग गारंटी रिगार्डिंग व्हाट? They are providing guarantee regarding two things. What are these? First of all, political risk insurance, and the second is about the credit enhancement. ठीक है. इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करेंगे रिगार्डिंग द फोर्थ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दे आर प्रोवाइडिंग, इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी एंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, एक्सप्रोप्रिएशन, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंस, नॉन ऑनरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. ठीक है. अब इन पांचों के मतलब क्या है, हाउ दे बेसिकली वर्क इन केस ऑफ दिस मीगा, आई नीड टू टेल यू इन वेरी ब्रीफ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ध्यान से सुनिएगा. देखिए जब आप बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में दो तरह के रिस्क होते हैं. द वन काइंड ऑफ रिस्क इज नोन एज अ कमर्शियल रिस्क एंड द सेकेंड इज बीइंग काइंड ऑफ नोन एज अ नॉन कमर्शियल रिस्क एंड लॉसेस. कमर्शियल रिस्क वो रिस्क, जैसे अगर हिंदी में बोलें तो वाणिज्यिक जोखिम और गैर वाणिज्यिक, यानी कि कमर्शियल रिस्क एंड नॉन कमर्शियल रिस्क. कमर्शियल रिस्क वो रिस्क होते हैं बिजनेस से संबंधित जो किसी बिजनेस के काम करने के तरीके पर डिपेंड करते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अनअकैडमी ने एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च किया. ठीक है. उसके लिए दे स्पेंट करोड्स ऑफ रुपीज फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट समहाउ जो रिजल्ट हम लोग चाहते थे वो रिजल्ट हमें नहीं मिले. तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि जो लॉस हुआ है हमें, दैट इज ओनली बिकॉज द काइंड ऑफ प्लानिंग वी हैव डन एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव लॉन्च, एज वी आर नॉट एबल टू गेट अ सक्सेस हियर, सो इट्स अ लॉस टू अस. और इस लॉस के लिए आप किसी और थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा काम था, हमारा एक्शन था, गड़बड़ हुई है तो हमें ही भरना पड़ेगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी के एक्शन से जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो कंपनी के, और जो कंपनी के लॉस हो रहे हैं वो बियर कौन करेगा? वो भी कंपनी ही बियर करेगी. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
अब देखिए नॉन कमर्शियल रिस्क एंड लॉसेस की अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए देर इज अ कंपनी, ओके, मान लीजिए कंपनी है जो महाराष्ट्र में है और यू कैन से इट इज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। दो ग्रुप के लोग हैं जिनके बीच में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके, सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ ग्रुप्स। इन दोनों के बीच में मान के चलिए शुरू हुई लड़ाई झगड़ा, दे स्टार्टेड डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फाइटिंग अमंग ईच अदर, लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते इन लोगों ने क्या किया, दीज पीपल एंटर्ड द प्रीमाइसिस ऑफ दिस बिल्डिंग, जो एक कंपनी की बिल्डिंग थी उसके प्रीमाइसिस में ये लोग घुस गए, दे एंटर्ड, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे सिंपली सेट द बिल्डिंग ऑन फायर, और इस बिल्डिंग में आग लगा दी, ठीक है। अब देखिए इस बिल्डिंग में जो आग लगाई गई और जो इस कंपनी को नुकसान हुआ, इस कंपनी को जो नुकसान यहां पे हुआ है वो उसके बिजनेस से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि यहां पे कंपनी ने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखिए इन फैक्टर्स की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरेगा कौन, ये कंपनी भरेगी, ठीक है। अगर कंपनी ने कुछ इंश्योरेंस ले रखा है, जो भी ले रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज व्हाट, नुकसान है किसका, कंपनी का। तो कंपनी के एक्शंस की वजह से नुकसान नहीं हुआ है, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द वर्क ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ वर्किंग, इट इज बेसिकली समथिंग ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। और यहां पे आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे गॉड क्रिएटेड थिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज नॉट समथिंग विद द हेल्प ऑफ यू कैन से द गॉड्स एक्शन, इट इज समथिंग अबाउट यू कैन से some sort of human action only that is leading to the problem to the company। भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, बाढ़ आ गया, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट दी मैन मेड एक्शन, बट द पॉइंट इज व्हाट, दैट इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू दी बिजनेस। जैसा मान लीजिए किसी इंसान ने कंपनी के प्रेमाइसिस में जाके बॉम्ब लगा दिया, ओके, सो बॉम्ब लगाने से क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा, जब बम फटेगा उससे लोगों को भी नुकसान होगा। So point is what, whatever amount of financial loss you have here, that is basically related to something called non-commercial risk and losses। यानी कि कंपनी के बिजनेस से ना जुड़ के जब किन्हीं और फैक्टर्स की वजह से कंपनी को नुकसान होता है, so you can say that kind of losses are known as a non-commercial risk and losses to that particular company। I hope you people have been getting what I'm trying to say here, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कि ये जो लॉस हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को, अगर वो एक फॉरेन कंपनी है, मान लीजिए अगर यही पे हुआ कि एक फॉरेन कंपनी जिसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग इंडिया में है और यही कम्युनल वायलेंस या किसी भी वायलेंस की वजह से अगर ये लोग लड़ते लड़ते इस फॉरेन कंपनी की बिल्डिंग में घुस गए और इस बिल्डिंग में आग लगा दी, और जो नुकसान हुआ उससे डेफिनेटली कंपनी का नुकसान तो हुआ, पर उससे बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को। वाई इंडिया इज हैविंग कंपैरेटिवली बिगर अमाउंट ऑफ लॉसेस, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक मैसेज जाएगा कि भैया इंडिया में जो कंपनीज के ऑफिसेज हैं वो सिक्योर्ड नहीं हैं, वहां पे लोग कंपनी के प्रीमाइसिस में घुस के कंपनी की बिल्डिंग्स में आग लगा देते हैं। समझ पा नहीं पा रहे हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड टावर का, आप जानते हैं यूएस में क्या हुआ था, दैट टेररिस्ट बेसिकली हाईजैक द प्लेन एंड सिंपली रैम्ड इन द बिल्डिंग, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू द नॉन कमर्शियल रिस्क एंड लॉसेस, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, दैट इज नॉन रिलेटेड, अगेन इट्स अ मैन मेड एक्शन। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पॉइंट ये है कि इसमें कंपनी को नुकसान जो है तो है, बट उससे बड़ा नुकसान है इंडिया को। इंडिया को नुकसान क्यों है, क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पे मैसेज जाएगा कि इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है बिजनेसमैन को। सो डोंट गो टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सोचिए जब ऐसा एक मैसेज जाएगा तो जो एफडीआई का इनफ्लो इंडिया में है वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज वन थिंग। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए अगर हमारे देश में एफडीआई नहीं आ रही है या हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स इतने कीन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें केवल हमारा नुकसान नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ लॉस टू दी फॉरेन कंपनीज को, दैट इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ अ बिग लॉस। व्हाई दैट इज ऑल्सो लॉस टू द फॉरेन कंपनी, क्योंकि अगर वो फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आके काम करती, देन सर्टेनली यू कैन से दे विल बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट, और जब वो प्रॉफिट कमाती तो हमें तो डेफिनेटली फायदा होता, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती, 50 तरह के बेनिफिट हमें मिलते। बट द पॉइंट इज व्हाट,
when they will earn some sort of benefits say the profits say they can also send this money back to their own country, यानी कि उनके लोगों को भी हमारे यहाँ पे काम करने से फायदा होता. Getting what I'm trying to say? So basically it's a two-way process. So first of all it's a loss to the company, then it's a loss to India, and then it's also a loss to the companies who wants to invest in our country because of this particular fear. अब देखिए इसी डर को मिटाने के लिए 1988 में मीका को बनाया गया और मीका ने क्या बोला that I am going to provide a guarantee against the investment risk when a company is going to face the losses due to the non-commercial risk and losses. यानी कि जब कंट्रीज मेरे आके मेंबर बनेंगी, that means if a country will become member to MIGA, then some sort of insurance will be given to the companies regarding the non-commercial risk. Getting? तो precondition क्या है? The country who is investing should be a member to MIGA and the country who is getting investment should be member of MIGA. यानी कि मान लीजिए अगर किसी यूएस की कंपनी को इंडिया में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रोटेक्शन उस यूएस की कंपनी को तभी मिलेगी जब यूएस मीगा का मेंबर होगा और इंडिया भी मीगा का मेंबर होगा. और आप जानते हैं 1991 व्हेन वी ओपनड अप आवर कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो इट वाज काइंड ऑफ अ नेसेसिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ मीगा, क्योंकि आप जानते हैं दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग काइंड ऑफ वेरी कॉमन इन केस ऑफ आवर कंट्री. Though it is leading to a problem to companies once in a while, but the problem is मैसेज तो नेगेटिव ही जाएगा ना ग्लोबल लेवल पे. तो उस चीज को ध्यान में रख के हमने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया एंड देन इन 1994 वी गॉट द मेंबरशिप ऑफ द मीगा. एंड देन यू कैन से नाउ द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बीइंग काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द non-commercial risk and losses when the foreign companies are applying in case of our country or investing in case of our country. अब देखिए किस तरह के रिस्क को और किस तरह के नॉन कमर्शियल लॉसेस को ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट द पॉलिटिकल रिस्क. और पॉलिटिकल रिस्क में आपके चार तरह की चीजें हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं. सपोज देयर इज अ फॉरेन कंपनी कॉल्ड ABC, ओके, एंड देन देयर इज एन इंडियन कंपनी और यू कैन से द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ओन्ड कंपनी. That is something you can say the government of India owned company means PSU. इन्होंने इस फॉरेन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि when you people will come to our country for the purpose of investment, then we are going to help you in these areas. और मान लीजिए आने के बाद ये लोग अपनी बात से मुकर गए. So in this case, whatever amount of losses this company will face, you can say that will be compensated by whom? That will be compensated by MIGA here. Are you getting what I'm trying to say? तो पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके किसी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है और बाद में वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, देन द मीगा इज गोइंग टू हेल्प देम आउट. दैट इज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड थिंग इज अबाउट द करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी एंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब मान लीजिए ABC इंडिया में आके ABC ने इंडिया में आके काम किया और काम करने के बाद मान लीजिए आफ्टर 10 years डाउन द लाइन, 10 साल के बाद दे हैव बीन थिंकिंग दैट वी वांट टू गो बैक टू आवर कंट्री. मान लीजिए कंपनी आई थी यूएस से 2022 में और 2032 में नाउ दे वांट टू गो बैक. अगर इनको वापस जाना है, सो इमेजिन इफ दे वांट टू गो बैक, तो उस केस में क्या होगा? जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने यहाँ पे कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट को इनको क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू कन्वर्ट इट. कन्वर्ट इन व्हाट सेंस? क्योंकि देखिए इनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे रुपीज में और ये पैसा किस में लेके जाएंगे? दे वांट टू टेक द मनी बैक इन डॉलर्स. अब गवर्नमेंट ने बोला हम तो आपको नहीं जाने देंगे. ओके, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गो बैक. पॉइंट इज व्हाट? हम क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे और काम करें. तो इस केस में मान के चलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू टेक बैक टू योर कंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द कन्वर्जन ऑफ इट इनटू द फॉरेन करेंसी, देन यू कैन से अगेन इट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल थिंग. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आप जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट आपको जाने नहीं दे रही है और आपकी करेंसी को कन्वर्ट नहीं करने दे रही है, तो उस केस में मीगा इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. दैट मीन्स अ कंपनी इज बेसिकली फ्री टू गो एनी टाइम बैक. द गवर्नमेंट कांट स्टॉप यू हियर. गेटिंग? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? एक्सप्रोप्रिएशन. एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सरकारी बहिष्कार, यानी कि बॉयकॉट किया जा रहा है. आपको याद होगा, एग्जाम्पल में देता हूं, कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था Hyundai कंपनी का. जब Hyundai कंपनी जो पाकिस्तान में बेस्ड है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी थी दैट वी पीपल आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सपोर्ट टू दी
पीपल ऑफ आजाद कश्मीर, दैट इज व्हाट दे सेड। तो उस टाइम आपको याद होगा कि हमारे इंडिया में एक ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चला था, बॉयकॉट Hyundai, दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड। पॉइंट ये है, अब ये जो किया गया था दैट वाज समथिंग डन बाय द पीपल, नॉट बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या किया था इस केस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली सेड दैट वी वांट नीड सम सॉर्ट ऑफ explanation on the part of the Hyundai that why they gave such kind of point. When something is our territory, then how you can say it's a basically part of the Pakistan's territory? Getting what I'm trying to say? तो उस केस में अगर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट कि इंडिया के लोग Hyundai के प्रोडक्ट ना खरीदें, तो सोच सकते हैं कि क्या हालत होती है इस कंपनी की। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट टाइम ओनली पीपल, अब देखिए जनता के पास तो आज़ादी है बोलने की और उन्होंने अपनी आज़ादी को इस्तेमाल किया, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिडंट से। बट मान लीजिए अगर ऐसा होता देन बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन की गवर्नमेंट बहिष्कार कर रही है और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। सो इन दैट केस यू कैन से that point will be applied. So whatever amount of non-commercial risk and losses will be faced by the company here, that will be compensated by whom? That will be compensated by MEGA here. That is your third point. और फोर्थ पॉइंट आप समझ ही रहे हैं दैट दे हैव वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंस। वॉर हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, कुछ भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि वायलेंस हो रहा है देश के अंदर या कुछ भी और एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारी इन फॉरेन कंपनीज को नुकसान है। सो इन दैट केस अगेन दैट विल बी काइंड ऑफ कॉम्पनसेटेड बाय whom? MEGA again. Now the fifth point is non honoring of financial obligation. Non honoring of financial obligation का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉमिस किया कि व्हेन यू पीपल विल कम टू आवर कंट्री, फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यू, और किसी पीएसयू के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा। बट इमेजिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे सिंपली सेड कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट द्वारा अगर बोली गई है या दी गई है, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उस केस में मान के चलिए वट एवर अमाउंट ऑफ losses they are going to have, that is going to be on the part of what? That is also be on the part of MEGA. ठीक है, कि बैंक से लोन मिल जाएगा, हम आपको इस तरह क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, दिस काइंड ऑफ प्रोमिसेस आर बीइंग देयर एंड बट इट हैज टू बी इन रिटर्न। देन आफ्टर दैट यू कैन से द लॉस विल बी कॉम्पनसेटेड बाय whom? By again will be the MEGA who will compensate your losses. तो देखिए पांचों ही केस में आपको देखने को मिलेगा, देन इन एनी ऑफ दीज एरियाज it is not related to something called commercial risk, it is something related to the non-commercial risk and losses. तो यहाँ पे MEGA क्या कहता है कि आओ मेरे मेंबर बनो, and once you become the member of my agency, then certainly I'm going to provide this kind of insurance. Getting what I'm saying? So this agency at a global level is basically providing such kind of insurance. और आप जानते हैं कि this is hardly happening, at any time. It's just that आप जैसे आप गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करेंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपको भी पता होता है कि nobody wants कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो और ये सब प्रॉब्लम हो, and once in a good number of insurance policy only you can say few number of people are being facing such kind of problem. तो यहाँ पे probability मान के चलिए और भी कम आ जाती है आपकी MEGA के केस में, क्योंकि आप देखिए हमारे इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे दैट हार्डली एनी काइंड ऑफ केसेस यू पीपल आर बीइंग एबल टू सी कि किसी फॉरेन कंपनी को इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो, बट कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज थोड़ी सी रिक्वायर्ड हो जाती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ MEGA इज। अब एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ पे आता है, वो ये होता है कि सर MEGA के पास पैसा कहाँ से आएगा? सो द पॉइंट इज व्हाट, व्हेन द कंट्रीज आर बिकमिंग मेंबर टू MEGA, they need to buy the share and they need to pay for it. So when they become member and they are being paying, so with the help of that they are being having good amount of money with them. और ध्यान के चलिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, under that you have 3 agencies who are basically only doing the work of lending and they being earning good amount of money. बात करेंगे IBRD, IDA और IFC, तीनों ही पैसा lend करते हैं और कमाते हैं। Okay, so do remember MEGA is never short of fund in any case at a global level. समझ पा रहे मेरी बात? तो ये हुई डिस्कशन आपकी MEGA के बारे में। सो डू रिमेंबर MEGA इज प्रोवाइडिंग द रिस्क इंश्योरेंस रिगार्डिंग द नॉन कमर्शियल लॉसेस टू द फॉरेन कंपनीज। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही काम कर रही है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इट्स द इंश्योरेंस विल बी गिवन टू ओनली टू द फॉरेन कंपनीज हियर। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज।
ठीक है, चलिए। सो दैट इज ऑल आई नीड टू टेल यू अबाउट द मीगा। अब बात करते हैं हम आईएफसी की, जो हमारी फोर्थ एजेंसी है ग्लोबल लेवल पे एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए आईएफसी की अगर आप बात करेंगे, देन यू नो इट इज बीइंग फाउंडेड इन 1956 एंड आईएफसी has invested more than $321 billion in emerging market and developing economies. Now, I told you IBRD is the one who is providing loans to only governments, middle income country. IDA is providing loans to again only to the government, to the low income countries. But do remember IFC is providing loans to both government as well as the private company. So do remember IFC is a private sector lending arm. IFC is a private sector lending arm of the World Bank Group. यानी कि अगर मान के चलिए टाटा हो गया, फिर देन यू कैन टॉक अबाउट दी अदानी ग्रुप है, एनी कॉर्पोरेट इन केस ऑफ आवर कंट्री दे कैन ऑल्सो अप्रोच आईएफसी फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग लोन, और इनको भी मिलेगा। नाउ हाउ दे बीइंग डिफरेंट? IBRD में आई टोल्ड यू दैट दे बीइंग प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन एंड दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट हियर, बट इन केस ऑफ IFC डू रिमेंबर दे बीइंग प्रोवाइडिंग लोन एज पर दी मार्केट रेट ओनली, यानी कि एक जो इंटरेस्ट रेट जिसका नाम होता है लिबोर, लंडन इंटर बैंक offer rate. So do remember they're providing loans at a market rate. They're not providing any kind of concessional loan. Plus इसके ऊपर markup rate भी लगती है. Markup rate is what? That they're also being charging little extra over the LIBOR as per the credit rating of the country. अगर हमारी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो हमसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे, और रेटिंग हमारी अच्छी होगी then they will charge us comparatively LIBOR equal to that or little bit extra in comparison to that. You getting what I'm trying to say? A strong and engaged private sector is indispensable to ending extreme poverty and boosting shared prosperity. That's where IFC comes in. We have more than 60 years of experience in unlocking private investment, creating markets and opportunities where they are needed most. Since 1956, IFC has invested more than $321 billion in this and this. IFC finance projects and companies through loans from our own account, typically for 7 to 12 years. यानी कि इनका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो होगा आपका 7 से 12 साल का. दैट इज व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ द लोन. सो डू रिमेंबर एज पर द मार्केट रेट एंड मोर ओवर द लोन टेन्योर इज अराउंड 7 to 12 years. We also make loans to intermediary banks, leasing companies and other financial institutions for on lending. यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए, या फिर मान के चलिए किसी ICICI बैंकों को लोन चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग फर्दर, देन दे कैन ऑल्सो अप्रोच द IFC फॉर द पर्पस ऑफ लोन्स फर्दर. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो कहने का मतलब क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल डायरेक्टली एंड देर ऑल्सो बेसिकली प्रोवाइडिंग लोन्स टू द intermediary so that they will be able to lend the other people. But one thing you need to keep in mind, they've been providing loans as per the market rate, no concession here. But फिर भी अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे कि even though they've been providing loans as per the market rate, but it is still a win-win situation for India. The reason is what? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो मान के चलिए इंडिया से टिपिकली हाफ के आसपास होती हैं. वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे बीइंग चार्जिंग करंटली, तो अच्छा खासा फायदा हमें होता है. अब देखिए अगर आप बात करेंगे ना आईएफसी से लोन्स के एक्सपोजर की, तो इंडिया आपको नंबर 1 पे मिलेगा. सो दिस इज व्हाट द टेबल यू पीपल आर बीइंग एबल टू सी. दैट टेबल आई हैव टेकन फ्रॉम द आईएफसीज एनुअल रिपोर्ट. जो इनकी एनुअल रिपोर्ट आती है 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. So as you can see, India is the largest beneficiary of the loans given by the IFC. So almost you can say 6.9 billion US dollar. So the total loan portfolio, around 11% of the loans have been going to India only. China की बात करेंगे at second place 7.4, Turkey 6.9, then Brazil 5.75, South Africa, Nigeria, Colombia, Vietnam, Mexico and Indonesia. बहुत सारी कंट्रीज आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये भी एशिया की, ये भी एशिया की है. So good number of countries we are having from Asia only, okay, and the remaining kind of countries you will find they've been coming from what you say from the African continent. और तो मेनली आपको सारे के सारे जो यहाँ पे देश देखने को मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे या तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, या फिर वो आपके एशिया से हैं, या फिर वो आपके सदर्न अमेरिका से हैं. ओके, दैट इज व्हाट द एरियाज फ्रॉम वेयर द कंट्रीज आर बेसिकली बोरिंग फ्रॉम देम. और अब मान के चलिए जब से आईएफसी स्टार्ट हुआ है, दे हैव फंडेड ऑलमोस्ट 723 प्रोजेक्ट्स इन केस ऑफ आवर कंट्री. सो गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दीज पीपल हैव काइंड ऑफ फाइनेंस्ड इन केस ऑफ आवर कंट्री. तो आईएफसी से हमें बहुत बहुत हेल्प मिलती है मान के चलिए. मोर ओवर, द लास्ट एजेंसी दैट वी हैव इज अबाउट द ICSID.
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. द पॉइंट इज व्हाट इंडिया ने इसकी मेंबरशिप को अप्लाई ही नहीं किया है, बिकॉज व्हाट वी बिलीव व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ऑफ इंडिया with the rest of the country, we can simply take care of our own, or we have other agencies. With the help of that, we are going to simply help you out. इसीलिए if you basically see the number of members of the country, you will find ICSID के सबसे कम member है out of all the 5 agencies of the World Bank group. Getting what I'm saying? So do remember, when it comes to the World Bank, and World Bank group, I'm again repeating, World Bank is only about 2, IBRD, IDA, and World Bank group is about IBRD, IDA, MEGA, IFC, and then you have something called your ICSID. इन पांचों को मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक. तो कई बार प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट ऑल एजेंसीज यू हैव एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो आंसर इज व्हाट? दीज टू. And then if it is 5, then these. And I'm telling you, in some time in case of a this PSC exams, they're being simply asking the full form of these agencies. IBID के full form क्या है, IFC के full form क्या है, IAD के full form क्या है, and then the typical one, MEGA जिसकी सबसे टफ मानी जाती है, and then ICSID जिसकी नॉर्मली लोग ध्यान ही नहीं देते हैं. तो मान के चलिए वर्ल्ड बैंक के केस में अगर हम बात करते हैं तो जनता को, लोगों को IBRD, IDA के बारे में आइडिया होता है, IFC के बारे में आइडिया होता है, बट दे हार्डली नो अबाउट द MEGA. So really hope with the help of this particular lecture, you people are being able to understand the MEGA and moreover the ICSID also. Getting what I am saying? So ये 5 एजेंसी हैं. तो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में मुझे टोटली आपको बताना था in a brief and basic from our examination point of view. But obviously हम comprehensive बैच में इन सब चीज़ों की बात करते हैं. So there are so many other factors also which that we need to discuss about it. ठीक है, चलिए. Now after that we need to finish the lecture. So Unacademy, as you know, this championship is back. So win scholarship and prizes worth of 40 crore rupees. So top 5 rankers to win an exclusive meet and greet with an IAS officer. So 50 MCQs will be there, and then you have 60 minutes. And November 13, 11 AM, that is the time. So you can simply enroll for it. Okay. And then you can simply go for the GS doubt browse feature. So you can simply scan that QR code and you will be able to get all your doubts done. Okay. So that is all about the today's lecture. Then again, I'm repeating, please join the course. It's today that I'm going to start, or I have started this, what do you say, the comprehensive batch for economics. चलिए क्लास में मिलते हैं. Thank you very much. Take care and bye bye.